A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th business studies. So as you know very well, in the last class we have started the new chapter of your business studies, that is controlling. Okay, so in this chapter we are going to discuss what is the concept of the controlling and importance of the controlling. Next we will discuss relationship between the planning and controlling, okay, and steps in the process of control. Okay, so in the last class we have already discussed about the meaning of the controlling, as well as the different definition given by the different authors. Like controlling is simply means it is defined as the comparison of the actual performance and the planned performance. So if there is any deviation or the difference between the actual and the planned performance, and in that case any organization find the reason for that difference and take the different corrective measures to stop that mistakes or that deviation in the future period of time, so that we can actually attain the objectives or the goal. Okay, so we have already discussed. Next we have discussed the definition of the different authors, by the Terry and Franklin, Henry Fayol, Coons and the O'Donnell, Ricky W. Griffin. Okay, and scope we have discussed. Next topic, two aspects of the controlling, that is strategic control and the operational control. Next we have started, that is nature of controlling. Okay, so in the last class we have started what are the nature of the controlling. So we have discussed about controlling is a goal oriented function. That means we have taken some goal or objective so as to complete it. Okay, so because of every organization start with the obtaining some objectives or the goals. Okay, next one is controlling is an all pervasive function. That means controlling is present everywhere. We can't say that controlling should be present only for the top level and we will skip it for the middle as well as low level. Okay, so controlling is the task which will be regulated at all levels by the different organizational members. Okay, so it is here saying that controlling is not the task of the top level managers, okay, only, but manager working at all the levels. All the levels वाले जो workers हैं उन सबके लिए क्या होता है, ये important होता है. So top level, middle level, operational level perform the controlling function because of to achieve the certain goals or the objective, right? Next one is nature of controlling is that is so till here we have already discussed in the last class. In today's class we are going to study the further nature, and after that we will discuss another topic. So let's start with the third point, that is controlling is both backward looking as well as forward looking function. Okay? कंट्रोलिंग का सिंपल सा मतलब ये नहीं होता है कि हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं सो ओनली फॉर द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. हम लोग वो कंट्रोलिंग क्या है उसका बैकवर्ड भी देखेंगे कि पास्ट में क्या हो चुका है, एज वेल एज हम लोग उसको फॉरवर्ड लुकिंग भी करेंगे कि फ्यूचर में भी क्या होगा. ओके, सो कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज मैनेजर कंपेयर द प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. And to measure the actual performance, they have to look back to the performance already done. Okay, so controlling क्या है, एक backward looking function है, पीछे की ओर देखता है जो हो चुका है, मतलब जो हम लोग ने प्लान किया था, ठीक है, उसको देखता है, and with the actual performance, और जो actual performance हुआ है उन दोनों के बीच का comparison. तो हम लोग ने क्या देखा, previous देखा, बैकवर्ड देखा जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, प्लान किया था. प्रेजेंट में हम देख रहे हैं या फ्यूचर में हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या होगी. सो विद द एक्चुअल एंड टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, और हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को. दे हैव टू लुक बैक टू द परफॉर्मेंस ऑलरेडी डन, और हम लोग उस केस में मेजर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को
दे हैव टू लुक, उसके लिए हमें अपने जो भी ऑलरेडी हम लोग ने परफॉर्मेंस कर लिया है उस परफॉर्मेंस को हमें देखना पड़ता है। क्योंकि जब भी आपको अपना कुछ भी चेक करना है दैट आप क्या है कि ग्रोथ कर रहे हो या डेवलपमेंट कर रहे हो, तो आप उन चीज़ों को अपने प्रीवियस स्टेज से कंपेयर करते हो। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 10th और 12th का रिजल्ट। 10th में आप देखते हो कि मे बी आपका 95% आया हो, अब आप क्या है कि आप अपना ग्रोथ 12th में देख रहे हो तो 98, तो आप लोग क्या कहोगे कि हाँ ग्रोथ हुआ है इन पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो हम लोग ने यहाँ पे फ्यूचर को अपने पास्ट के साथ कंपेयर किया, कुछ भी हम कंपेयर करके ही हम लोग कोई भी रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। सो कंट्रोलिंग इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग, कंट्रोलिंग क्या है, एक फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बिकॉज इट डज नॉट एंड ओनली बाई कंपेयरिंग पास्ट परफॉर्मेंस विथ फ्यूचर। क्योंकि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी आगे भी देखता है, क्यों, क्योंकि बस इसमें ये हम नहीं करते कि पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर लेते हैं, बट इट ऑल्सो सजेस्ट मेजर टू रिमूव द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ प्लान्स। और इसमें हम लोग मेजर्स को भी देखते हैं और उन मेजर को देखते हैं कि रिमूव करते रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ प्लान्स, कि जो भी प्लान्स हम लोग ने बनाया था वो प्लान फेलियर क्यों हुआ है, उसके पीछे के रीज़न देखते हैं और उसका क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेजर्स को भी अडॉप्ट करते हैं। कि अगर हम लोग ने इस जैसे कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स दे रहा है, इस सेमेस्टर हम देख रहे हैं कि मेरा नंबर कम आया है, तो क्यों नंबर कम आया, क्योंकि इस साल इस जो सेमेस्टर में मैं एकदम पढ़ी नहीं, हम लोग थोड़ा सा लोग बाहर सब लोग ज़्यादा घूम रहे थे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए वो नंबर कम आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम क्या कर सकते हैं, सेमेस्टर सिंपली मतलब कि जो भी आप कोई भी एग्ज़ाम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो एग्ज़ाम्स क्या है मतलब आपका 6 मंथ्स में डिवाइडेड होता है, इसीलिए मैंने एग्जांपल ले लिया। फिर 6 मंथ्स बाद एग्ज़ाम हो रहा है, आप उस टाइम देखोगे कि हाँ मेरा नंबर क्यों कम आया था, क्योंकि उस दैट सेमेस्टर में मैंने उतनी प्रॉपरली पढ़ाई नहीं की थी जितनी मुझे करनी चाहिए। अब नेक्स्ट में मैं क्या करूँगी, ज़्यादा अच्छे से पढ़ूँगी और मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने किससे सीखा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट परफॉर्मेंस से देखा। तो फ्यूचर जो है कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी रोल इसलिए प्ले करता है क्योंकि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो चीज़ हमसे गलती पिछली बार हुई थी उनके फेलियर को समझते हैं और आगे ऐसे मेजर्स लेते हैं जिससे हम उसको कवर अप कर सकें। ओके, सो दिस फंक्शन मेक श्योर दैट प्लान्स एंड परफॉर्मेंस मैच इन फ्यूचर। ये फंक्शन हमें क्या श्योर करता है कि प्लान्स और परफॉर्मेंस क्या करना चाहिए, वो जो भी हम लोग ने प्लान किया, ठीक है, और जो परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं वो मैच करना चाहिए इन फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम में ऑल्सो। ठीक है, सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग को हम क्या कहते हैं कि वो बैकवर्ड लुकिंग भी है एज वेल एज वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। नेक्स्ट वन इज दैट इज कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सेम चीज़ कि कंट्रोलिंग क्या है, ऐसा नहीं है कि हम किसी अभी प्रेजेंट में अभी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंट्रोलिंग क्या है कि हम इसको कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वी आर यूजिंग इट और फिर बाद में हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, कंट्रोलिंग इज़ अ नॉट अ वन टाइम जॉब। कंट्रोलिंग कभी भी वन टाइम जॉब नहीं है कि बस अभी हम लोग उसका यूज़ करेंगे, बट इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इट इज़ कैरीड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग। ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रहा है, तब तक जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का वाइंड अप टाइम हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो कंट्रोलिंग भी बंद हो जाएगी, बट टिल दैट कंट्रोलिंग विल बी कंटिन्यूसली कैरीड ऑन। कंट्रोलिंग क्या है, वो रन होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शंस। ठीक है, कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ठीक है, एवरीवेयर मतलब हर एक लेवल पे प्रेजेंट होता है। कंट्रोलिंग इज़ अ बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, कि हम इसमें बैकवर्ड को भी देखते हैं, बैकवर्ड जो हमने ऑलरेडी प्लान किया परफॉर्मेंस को, और फॉरवर्ड जो हम उस फॉरवर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हैं और अपनी मिस्टेक्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करते हैं। एंड कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन।
कंट्रोलिंग क्या है, वो वन टाइम का नहीं है कि एक बार हम लोगों ने कंट्रोलिंग कर लिया, कंपेयर कर लिया, उसके बाद हम उसको लीव आउट कर देंगे। नहीं, ये क्या है, ये आपका कैरीड ऑन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा अनटिल एंड अनलेस आपका ऑर्गेनाइजेशन का शट डाउन नहीं हो जाता। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक कंट्रोलिंग। ओके, सो दिस इज़ योर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। इसी को सिंपली दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन जिस्ट कि कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड ऑल परवेसिव फंक्शन, backward looking as well as forward looking. Controlling is a continuous function. Next topic of your controlling, that is importance of controlling. ये तो हम समझ गए कि कंट्रोलिंग का नेचर कैसा है, कि उसमें क्या है, वो हर एक टाइम की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल पे ज़रूरत है, मिडिल पे नहीं है। गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है। ये तो उसका नेचर था। नेक्स्ट आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग की इम्पॉर्टेंस क्यों है, मतलब क्यों हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कुछ तो उसके पीछे वैलिड रीज़न होगा। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सो फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहला वही सेम नेचर कि ये क्या हेल्प करता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के। सो व्हेन द प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, these are directed towards achievement of organizational goal, and the controlling function ensure that all the activities in the organization take place according to plan, and if there is any deviation, timely action is taken to bring back the activities on the path of planning. Okay, so when all the activities are going according to the plan, then automatically these will direct towards the achievement of organizational goal. Okay, so when the plans are made, जब भी आपको पता है सबसे मेन फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें व्हाट वी हैव टू अचीव, हमें अचीव क्या करना है। तो जब भी प्लान्स बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वो किसकी ओर डायरेक्टेड होते हैं, वो डायरेक्टेड होते हैं कि हमें जो भी हम लोग ने गोल बनाया है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना है। एंड द कंट्रोलिंग फंक्शन इंश्योर डैट, जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो क्या इंश्योर करता है, ऑल द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू प्लान। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल हो गया कि जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग। जैसा हम लोगों ने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करना चाहिए। एंड इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन, अगर देखा जाता है कि प्लान्ड और एक्चुअल में डिफरेंस आ रहा है, टाइमली एक्शन इज टेकिंग टू ब्रिंग बैक द एक्टिविटीज़ ऑन द पाथ ऑफ प्लानिंग। ठीक है, उसी टाइम पे हम क्या करेंगे कि टाइमली उसी टाइम ज़रूरत होती है कि हम कोई एक्शन ले कि जो हम उस प्लानिंग के पाथ से हट गए हैं, फिर हम उस प्लान के पाथ पे फिर वापस आ जाए। सो व्हेन ऑल दी एक्टिविटीज़ आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, जब सारी एक्टिविटीज़ प्लान के अकॉर्डिंग होगी, देन ऑटोमेटिकली दिस विल डायरेक्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, फिर क्या होगा, देन ऑटोमेटिकली जो भी अचीवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल का हो जाएगा। क्योंकि जब हम आप एक ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो कि आपको 12th में 96% लाना है, आप क्या उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, हर एक के लिए टाइम दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका मे भी आपका 99 आ जाए। ये कैसे, क्योंकि आपने अपने गोल को बहुत सीरियसली लेके चला और आप हर एक चीज़ कर रहे हो। बट आपने गोल बना लिया कि नहीं, मेरे को बिज़नेस में 100 लेकर आना है, और आप बिज़नेस को पढ़ ही नहीं रहे हो। सो कोई भी वहाँ पे आके आपको बिज़नेस में नंबर नहीं दे देगा। ठीक है, तो ये क्या डिपेंड करता है कि आप अपने जो भी गोल को बनाए हो, सो यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर अचीविंग दैट गोल। ओके, कि आप हर एक चीज़ करो, उसको आपको गोल को क्या करना है, अचीव करना ही करना है। सो फर्स्ट वन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज इट हेल्प्स इन अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या हेल्प करता है, अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को। नेक्स्ट वन इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। हाँ, देखिए यहाँ पे एक आप विद दी हेल्प ऑफ ये डायग्राम के थ्रू आप देखो,
सॉरी नॉट अ डायग्राम, इट इज़ अ पिक्चर। पिक्चर के थ्रू देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये जो मैनेजर और बॉस है वो कह रहा है कि हाउ इज़ द प्रोडक्शन गोइंग ऑन। वो पूछ रहा है कि जो प्रोडक्शन है वो कैसा चल रहा है, मतलब प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सो ही इज सेइंग दैट सर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द वर्कर्स हैव अ डेविएशन ऑफ 10 to 20 यूनिट्स पर डे। कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वर्कर्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हर दिन का 10 और 20 डेविएशन आ रहा है। मतलब अगर हम लोग कुछ 50 लेके चल रहे हैं, आज के दिन 50 होना चाहिए, तो हम 30 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं या 40 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, डेविएशन। सो देन ही सेड ओके, देन रिड्यूस द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बाय 20 यूनिट्स। कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हम लोग ने 50 लेके चला था, अब उसको 50 को हमें क्या है 20 यूनिट्स को कम करके 30 पे लेके आ गए, तब तो प्रोडक्शन उतना हो पाएगा। सो ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा है। सो सेकेंड आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंस इज दैट इज जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जज क्या करना, जो भी स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया उसकी एक्यूरेसी कितनी है। सो थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन ईजिली जज whether the standard और target set are accurate or not। अभी देखिए क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है कि किसी की एफिशिएंसी कितनी है। पर डे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी उनके वर्कर्स की 50 है, बट हम क्या है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे 70 प्रोडक्शन हो। सो ये क्या है, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि हमें अपने स्टैंडर्ड को भी देखना है, हमें अपनी एक्यूरेसी को भी। अगर कोई बहुत एवरेज बच्चा है, वो 80% लाने वाला है, ठीक है 80 to 90, अब हम उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो 99 पॉइंट समथिंग लेकर आए या वो 70 to 80 वाला है, तो ये क्या है, ये गलत है। क्योंकि हम किसी के लिए उसकी स्टैंडर्ड को अगर मेंटेन करें तो हमें ये भी देखना चाहिए दैट ही इज़ कैपेबल और नॉट। ऐसा नहीं कि हम बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लें और हम कुछ भी ना करें। सो सेम थिंग इज़ एप्लीकेबल इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि हमें अपने स्टैंडर्ड और टारगेट को देखना है कि वो एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है। तो इसके लिए जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड है उसकी एक्यूरेसी को देखना। सो थ्रू स्ट्रैटेजिक कंट्रोलिंग वी कैन ईजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर एक्यूरेट और नॉट। कि जो भी स्टैंडर्ड और टारगेट सेट किया गया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। So an accurate control system revises standard from time to time। तो जो भी accurate control system है, जो accuracy को control करता है, वो हमेशा ये revise करता है देखता रहता है कि standard from time to time, कि उस standard को time to time check करता रहता है to match them with the environmental change। कि environmental change के साथ वो भी उस एक्यूरेशन को, उस एक्यूरेट लेवल को, स्टैंडर्ड को भी वो चेंज करता रहता है कि इन्वायरमेंट कैसा है, प्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं। अब हम 5 या 10 वर्कर्स को लेके चल रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि पर डे हम 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड में भी चेंज करना बनता है। नेक्स्ट वन इज मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपरली क्या है, एफिशिएंटली उनका यूज़ करना है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, दैट इज़ लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है वो कंट्रोल करता है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रोल करता है कि ट्रैफिक क्या, रेड लाइट का कुछ मीनिंग है, ग्रीन का है, येलो का है, तो ये क्या है, कंट्रोल करता है। सो इट कीप इट ऑन द राइट ट्रैक, राइट ट्रैक पे करता है कि आपको अभी लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है। तो ये क्या है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। सो ईच एक्टिविटीज़ परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। सो जो भी एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म होगी वो कैसे होगी, जो भी हमने प्री डिटरमाइंड एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लिया है। सो एज अ रिज़ल्ट देयर इज़ मोस्ट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। उसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम इफ़ेक्टिव यूज़ करेंगे। ठीक है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है हम उतना ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाता है, दैट इज़ मोस्टली एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। सो ये हो गया आपका। फोर्थ वन इज़
फोर्थ इज इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। ठीक है, क्या इम्प्रूव करना है यहाँ पे? एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन को। सो एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम communicates the goal and standard of appraisal for employees to subordinate well in advance. Improving employees motivation का मतलब है कि जो भी employees जो काम कर रहे हैं उनके मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करना है। अगर वो डीमोटिवेटेड हो रहे हैं कभी किसी सिचुएशन में, तो उन्हें क्या करना है? उनको मोटिवेट करना है। सो एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? कम्युनिकेट्स द गोल एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल फॉर एम्प्लॉयज़ टू सबॉर्डिनेट्स वेल इन एडवांस। वो एडवांस में ही उनके जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी गोल को लेके चल रहे हैं, उनके बारे में वो पहले ही प्रॉपरली अच्छे से बात कर लेता है कि ऐसे उनका प्रोडक्शन करना है, ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो गाइड एम्प्लॉयज़ टू कम आउट फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। जो एक कंट्रोलिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में है वो क्या करता है? वो एम्प्लॉय को भी कहता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे बाहर आओ, कम आउट फ्रॉम देयर ओन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है, ओन प्रॉब्लम में या पर्सनल प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग की प्रोडक्शन में या कोई नॉलेज में, तो आपको उन प्रॉब्लम से दूर आना है। सो दिस फ्री कम्युनिकेशन एंड केयर मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। अब ऐसे प्रॉपरली कोई भी कंट्रोलिंग सिस्टम है वो क्या करेगा? प्रॉपरली आपसे बिहेव करेगा, उसका रैपोर्ट अच्छा होगा, वो आपको केयर करेगा कि नहीं आपको जो सारी प्रॉब्लम है आप उसको रिमूव करिए, उससे ओवरकम आइए, आप कर सकते हैं, ऐसे मोटिवेट करेगा। तो कोई भी एम्प्लॉय क्या होगा? वो ज़्यादा मोटिवेटेड होगा और वो अपना बेटर परफॉर्मेंस को देगा। तो ये क्या है? ये कंट्रोलिंग सिस्टम की एकदम नीड है, वो एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट वन इज दैट इज इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर और डिसिप्लिन को भी इंश्योर करता है। सो कंट्रोल क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल क्या करता है? एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है ऑर्डर का एंड डिसिप्लिन को इन दी ऑर्गेनाइजेशन में, कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ऑर्डर में काम होता रहे, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। सो इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट अंडर द चेक एंड मेक श्योर दे परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो कंट्रोल कर रहा है सिस्टम, वो क्या है? वो अपने सबऑर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम चेक करता रहे एंड मेक श्योर, ये श्योर करे दे परफॉर्म देयर फंक्शन एफिशिएंटली। वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली एफिशिएंटली परफॉर्म करे। सो शार्प कंट्रोल कैन हैव अ चेक ओवर डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर वो शार्पली कंट्रोल होता रहेगा तो कोई भी एम्प्लॉयज़ का अगर डिसऑनेस्टी है या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो अगर रैंडमली या रेगुलर इंटरवल पे चेक होता रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयज़ के अगर वो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं या डिसऑनेस्ट हो रहे हैं तो ये सब कुछ चीज़ें चेक हो जाएंगी। एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल मॉनिटर एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन कंप्यूटर मॉनिटर विच ब्रिंग्स मोर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन वर्क इन्वायरमेंट। अब स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, उनका मॉनिटर चेक किया, मतलब मॉनिटर, उनको मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा जो भी कंप्यूटर पे वो काम कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली वो चेक करें कि हाँ ये ऑफिशियल काम कर रहे हैं कि ये अपना उसी पे अपना फेसबुक ऑन करके काम कर रहे हैं या फेसबुक चला रहे हैं या कुछ भी अपना पर्सनल काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करना पड़ता है। हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को छोड़ नहीं सकते ऑर्गेनाइजेशन वाले कि नहीं वो जो भी काम कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग काम करें। नहीं, उनको हमेशा क्या है, उनके डिसिप्लिन को प्रॉपरली ऑर्डरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको चेक करते रहना चाहिए। विच ब्रिंग्स मोर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन दी वर्क इन्वायरमेंट, जो क्या करता है, एक ऑर्डर और डिसिप्लिन किसी भी इन्वायरमेंट में लाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यही सारी चीज़ें कंट्रोलिंग होती है कि हम लोग को इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी हम हैं उस पर पूरी कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, उस पर हमें देखते रहना चाहिए कि प्रॉपरली सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो इट इज़ योर इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये ऑर्डर और डिसिप्लिन को क्या कर रहा है,
इंश्योर कर रहा है। तो क्या क्या पढ़ लिया इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने, दैट इज़ हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, थर्ड वन इज मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, फोर्थ वन इज improving employees motivation, fifth one is ensure order and discipline, and the last, I think last one is, last importance of controlling is that is it facilitate coordination in action। ये क्या facilitate करता है, जो भी action perform हो रहा है उसमें क्या होना चाहिए, coordination भी होना चाहिए। So control helps to maintain equilibrium between मीन्स एंड एंड्स, ठीक है। जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया रहता है, जो भी मीन्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं और जो भी हमें अचीव करना है उनके साथ। सो कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज़ टेकन। कंट्रोलिंग ये श्योर करता है कि प्रॉपरली डायरेक्शन को लिया जा रहा है एंड दैट वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन प्रॉपरली, और जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोल अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो जो भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या नहीं, विच वर वेल कोऑर्डिनेटेड विथ वन अनदर, जो क्या है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है। अब ऐसा नहीं कि एक डिपार्टमेंट है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि सिंपली हम बात करते हैं कि एक का क्या है दूसरे के साथ वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन होता है कि एक परफॉर्म कैसे कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक का प्रोडक्शन, एक का डेवलपमेंट ये मैटर करता है कि वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट होगा तो वैसे वहाँ पे भी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, एक कंट्रोलिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक स्टैंडर्ड को मेंटेन किए रहते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड भी किए रहते हैं। एंड कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। कंट्रोल क्या प्रोवाइड करता है कि जो भी डायरेक्शन में क्या हो वो यूनिटी भी मेंटेन रहे, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, सो इन विच व्हाट वी हैव डिस्कस, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये क्या हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, जो भी एक्यूरेसी है उसको जज करता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन है वो इम्प्रूव है या नहीं। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन भी प्रॉपरली फॉलो हो रहा है या नहीं। एंड इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, जो भी कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ऐसी छोटे छोटे आपके क्वेश्चंस भी दिए हैं दैट यू हैव ऑल्सो स्टडी। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, टू मेक श्योर एम्प्लॉयज़ फोकस ऑन वर्क and follow the method of production as per plan, the management of Amira Limited decided to install CCTV in the factory of monitoring that activities of worker। तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन में प्लानिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा। तो आपको पता है क्या होगा, कंट्रोलिंग होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका एक इम्पॉर्टेंस पढ़ा, इट इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। तो वहाँ पे क्या है, वो कंटिन्यूसली CCTV के थ्रू हम क्या करते हैं, उसका देखते हैं कि प्रॉपरली वहाँ पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अभी इस चैप्टर में हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले ये देखते हैं। हम लोग ने इस चैप्टर में सबसे पहला देखा मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंपैरिजन होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस का, ठीक है। फिर इसका कि अगर उन दोनों के बीच में कोई डेविएशन आता है तो उस डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं और उनको आगे स्टॉप करने के लिए क्या है कि पहले इसका रीज़न जानते हैं एंड देन करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आपका इसका डिफरेंट डेफिनेशन देखा। फिर हम लोग ने क्या देखा, इसके स्कोप्स देखे, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग देखा। कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन, इट इज़ बोथ
backward looking and well forward looking. Controlling is a continuous process or function. So this is all your nature. Next we have started, that is importance of controlling. So it helps in achieving the organizational goal, judging accuracy of standard, making efficient use of resources, improving employees motivation and ensure order and discipline. And the last one is facilitate coordination in action. Till here we have already discussed in today's class. In next class we will start with the relationship between planning and controlling.